Hello students, welcome to Excellence Classes Way of Learning. Today we are going to discuss solid state. This is very important chapter students. First of all, as we know, matter has three different physical states. आपको पता है स्टूडेंट्स जो मैटर एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट इन द थ्री डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस. तो मैटर के जो थ्री स्टेट्स हैं, थ्री डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं, वो क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और इस चैप्टर में मेनली हमें क्या स्टडी करना है स्टूडेंट्स? सॉलिड का क्लासिफिकेशन. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स. द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स on the basis of nature of order present in the arrangement of constituent particles. तो यहाँ स्टूडेंट्स जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं सॉलिड्स को, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स. सिंपली कोई भी सॉलिड है उसमें कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स का क्या अरेंजमेंट है, उस बेस पे हमने क्लासीफाई किया है सॉलिड्स को. वो जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स का, दैट मे बी रेगुलर और इरेगुलर. So on this basis of the arrangement of constituent particles, we classify the solids into the two types. So this classification is very important students. And constituent particles may be atoms, molecules or ions. जो constituent particles हैं वो आपके atom हो सकते हैं, molecule हो सकते हैं और ions हो सकते हैं. तो दो टाइप के solids में हमने classify किया है. The first is crystalline solids. And the second one is amorphous solids. Crystalline solids and amorphous solids. And this classification is based on the arrangement of constituent particles. Amorphous solids. What is the meaning of amorphous? Amorphous means no form. Amorphous का मतलब है इन टाइप के सॉलिड्स में कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होगा. नो फॉर्म. नो फॉर्म का मतलब है इरेगुलर पैटर्न होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. And amorphous, this word is made up of the Greek word amorphos. ये जो amorphous word है ये आपका ग्रीक वर्ड amorphos से मिलके बना है और उसका मीन होता है no form. Simply amorphous solids are the solids which have no regular pattern. So simply अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा, टू टाइप्स के हैं, crystalline and amorphous. Now we are going to discuss about the crystalline solids. Crystalline solids क्या हैं students? Simply the substances whose constituent particles, कोई भी substance है उसके constituent particles हैं, and constituent particles may be atoms, molecules or ions. So simply what are crystalline solids? The substances whose constituent particles, atoms, molecules or ions are arranged in a definite geometric pattern. Are arranged in a definite geometric pattern in 3D space. In 3D space are called crystalline solids. So students, it is clear, if the arrangement of the constituent particles is in a regular way, इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, अगर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपका डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में है और रेगुलर फॉर्मेट में है, रेगुलर पैटर्न में है, देन द सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अगर रेगुलर पैटर्न है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है, तो हम उन सॉलिड्स को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे स्टूडेंट्स. दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. एंड सेकेंड वन इज अमॉर्फस सॉलिड्स. जो सेकेंड टाइप है सॉलिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स, उसमें मैंने क्या बताया आपको? अमॉर्फस सॉलिड्स. तो अमॉर्फस का मतलब था नो फॉर्म. इट मीन्स नो ज्योमेट्रिक पैटर्न, नो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न. द सब्सटेंसेस whose constituent particles, and constituent particles may be atom, molecules or ions. The substances whose constituent particles are not arranged in any regular arrangement. Substances whose constituent particles are not arranged in
any regular arrangement are called amorphous solids. तो सिंपली अगर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं है, इरेगुलर पैटर्न है, देन द सॉलिड्स आर amorphous solids. और amorphous का मीन ही था स्टूडेंट्स नो फॉर्म, क्योंकि amorphous हमारा ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज amorphous और विच मीन्स नो फॉर्म. तो यहाँ amorphous solids में कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, इरेगुलर पैटर्न होगा. सो दैट्स वाई वी कॉल देम amorphous solids. amorphous मीन्स नो फॉर्म. इट इज क्लियर. अब हम यहाँ स्ट्रक्चर से देखेंगे. हम यहाँ पे क्वार्ट्ज को फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज की बात कर रहे हैं. और यहाँ हम देखेंगे कि एक रेगुलर पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है. एक रेगुलर शेप है, वो पर्टिकुलरली रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स. इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे और हमें पता है हम इस पैटर्न को लॉन्ग रेंज तक ले जा सकते हैं. तो यहाँ ये जो रिप्रेजेंटेशन है फॉर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और हम ये ले रहे हैं क्वार्ट्ज के लिए, सिंपली SiO2 के लिए. देयर इज़ अ रेगुलर पैटर्न. यहाँ जो हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं या जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज का, दैट इज़ इन अ रेगुलर पैटर्न. ये आपका रेगुलर पैटर्न में है स्टूडेंट्स. तो जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बताया था, देयर इज़ अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न. यहाँ पे एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है जो फर्दर रिपीट हो रहा है, और वी आर गेनिंग और ऑब्टेनिंग रेगुलर पैटर्न. हमें रेगुलर पैटर्न मिल रहा है स्टूडेंट्स. तो यहाँ आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर वही एक फॉर्मेट रिपीट होता जा रहा है लॉन्ग फॉर्मेट के लिए. सो सिंपली हम क्रिस्टलाइन के लिए ये भी कहते हैं क्रिस्टलाइन कैन कंसिस्ट द शॉर्ट रेंज एज वेल एज द लॉन्ग रेंज ऑर्डर. ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. देयर इज़ अ रेगुलर पैटर्न, आपको दिख रहा है एक प्रॉपर फॉर्मेट रिपीट हो रहा है, एंड इन क्रिस्टलाइन देयर इज़ ए रेगुलर पैटर्न स्टूडेंट. और जैसा कि डेफिनेशन में भी बताया था, दिस इज़ क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज. तो सिंपली क्वार्ट्ज जो आपका है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिलिका, SiO2. तो अभी ज्योमेट्रिक पैटर्न में हमने ये दिखाया कि रेगुलर पैटर्न है क्रिस्टलाइन का. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अमॉर्फस फॉर्म ऑफ द सॉलिड्स. तो अमॉर्फस में कोई भी ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं होता है, इरेगुलर पैटर्न होता है. तो यहाँ कोई भी हमने इरेगुलर पैटर्न बना दिया. देयर इज़ नो ज्योमेट्रिक पैटर्न, देयर इज़ नो सिमेट्री, देयर इज़ नो रेगुलर पैटर्न, देयर इज़ नो डेफिनेट ज्योमेट्री. यहाँ इरेगुलर पैटर्न है, इनडेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है जो फर्दर जा रहा है. तो मेनली अमॉर्फस में भी क्या होता है, पहले समटाइम्स इट इज़ सीन कि थोड़ा सा ऑर्डर आपको दिखेगा, फिर डिसऑर्डर आएगा, फिर थोड़ा सा ऑर्डर दिखेगा, फिर डिसऑर्डर आएगा. तो ओवरऑल इरेगुलर पैटर्न होगा. दिस इज़ द अमॉर्फस क्वार्ट्ज ग्लास. दिस इज़ द अमॉर्फस सॉलिड. और उसमें हम पर्टिकुलरली किसको ले रहे हैं, क्वार्ट्ज ग्लास को ले रहे हैं स्टूडेंट्स. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस बोथ बाय द स्ट्रक्चर. क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज इज अ फॉर्म ऑफ SiO2. क्वार्ट्ज आपका SiO2 है, एंड क्या कंसिस्ट करेगा, इट हैज़ टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट्स. यहाँ पे क्या होता है, टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट्स होंगे विच आर ऑर्डरली अरेंज्ड इन क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज, जो आपके अरेंज्ड होंगे क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज में. तो सिंपली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका क्वार्ट्ज है वो SiO2 है. सो इट इज़ ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज. ये क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज का डिस्कशन किया हमने यहाँ. बट अगर हम अब बात कर रहे हैं अमॉर्फस क्वार्ट्ज ग्लास की, तो वहाँ पे क्या होगा, व्हेन SiO2 इज़ मेल्टेड, पहले हम क्या करेंगे, SiO2 को मेल्ट कराएंगे, एंड द मेल्ट इज़ कूल्ड देन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड इट इज़ कूल्ड, और फिर हम उसको कूल कराएंगे. इट फॉर्म्स क्वार्ट्ज ग्लास. हमें क्या गेन होगा, क्वार्ट्ज ग्लास गेन होगा, विच इज amorphous. क्वार्ट्ज ग्लास वी गेन विच इज amorphous, जो आपका amorphous होगा. और इसमें जो Si4 यूनिट्स होंगे वो रैंडमली ज्वाइंड होंगे स्टूडेंट्स. दिस इज amorphous. तो क्रिस्टलाइन में SiO4 ऑर्डरली अरेंज होगा, amorphous में SiO4 रैंडमली ज्वाइंड होगा. नाउ we have to study the differences between the crystalline solids and the amorphous solids. क्रिस्टलाइन और amorphous के बीच में अब हम differences देखेंगे. The number one difference is very basic. The constituent particles, for the crystalline की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, the constituent particles are arranged in a regular pattern. यहाँ क्रिस्टलाइन में जो constituent particles का
जो पैटर्न होगा या कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स अरेंज्ड होंगे, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे स्टूडेंट्स। सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न कंटेनिंग शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यहाँ पे शॉर्ट रेंज हो सकता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक परफेक्टली ऑर्डर है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न है स्टूडेंट्स। सो इट कैन बी गो अप टू द शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बट एमॉर्फस की अगर हम बात करेंगे, देन द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। यहाँ एमॉर्फस में जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होंगे वो आपके रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होंगे। देयर इज नो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, देयर इज इर्रेगुलर पैटर्न। इट मीन सिंपली नॉट रेगुलर पैटर्न होगा, बिकॉज एमॉर्फस का मतलब ही था स्टूडेंट्स नो फॉर्म। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, पर्टिकुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं है। सो द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, सो देयर मे बी एट द मोस्ट शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली। तो यहाँ मैक्सिमम प्रायोरिटी रहती है कि आपका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज रहेगा, मोस्ट अबाउट शॉर्ट रेंज ओनली, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमम केसेस में एमॉर्फस में। सेकेंड की अगर हम बात कर रहे हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ क्रिस्टलाइन में क्योंकि रेगुलर पैटर्न है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, शार्प। बट एमॉर्फस में हम क्या कह रहे हैं, दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि इरेगुलर पैटर्न है, कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं है, तो ये मेल्ट जो होंगे वो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। आपको रेंज ऑफ टेम्परेचर अप्लाई कराना पड़ेगा एमॉर्फस को मेल्ट कराने के लिए। थर्ड पॉइंट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, दीज क्रिस्टलाइन सिंपली दे आर एनाइसोट्रोपिक। जो आपके क्रिस्टलाइन है एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेज हैं, एनिसोट्रोपी शो करेंगे। बट एमॉर्फस आर आइसोट्रोपिक, दे आर आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। जो आपके एमॉर्फस हैं वो आइसोट्रोपिक हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक को। फोर्थ पॉइंट जो है आपका, फोर्थ डिफरेंस जो है, दे कैन बी क्लीव्ड ओनली अलोंग डेफिनेट प्लेन्स, दे कैन बी क्लीव्ड ओनली अलोंग डेफिनेट प्लेन्स। जब आप क्लीव कराओगे इसको तो आपको डेफिनेट प्लेन मिलेंगे, प्रॉपर प्लेन मिलेंगे इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन, बिकॉज यहाँ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न है। बट अगर हम एमॉर्फस की बात कर रहे हैं, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, सो दे अंडरगो एन इररेगुलर कट, दे अंडरगो एन इररेगुलर कट। यहाँ जो एमॉर्फस हैं वो आपके इररेगुलर कट में जाते हैं, दे अंडरगो एन इररेगुलर कट। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, दे हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर हम क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न है, तो उनका जो हीट ऑफ फ्यूजन होगा वो डेफिनेट होगा स्टूडेंट्स, फॉर द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बट एमॉर्फस में इरेगुलर पैटर्न है, सो दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हीट ऑफ फ्यूजन है, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आपकी डेफिनेट नहीं होगी फॉर द केस ऑफ एमॉर्फस, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। बट क्रिस्टलाइन में डेफिनेट होगा और एमॉर्फस में इनडेफिनेट। सिक्स पॉइंट, दे आर ट्रू सॉलिड्स। इट मीन्स सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टलाइन आर ट्रू सॉलिड्स, दीज आर ट्रू सॉलिड्स। व्हाई दीज आर ट्रू सॉलिड्स, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स। ये सॉलिड के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, कंप्लीटली फॉलो करेंगे, दैट्स वाई वी कॉल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स, इसलिए हम उनको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। बट अगर हम यहीं पे कह रहे हैं एमॉर्फस की बात, तो एमॉर्फस आपके ट्रू सॉलिड्स नहीं होते हैं, दीज आर स्यूडो सॉलिड्स। जो एमॉर्फस हैं वो स्यूडो सॉलिड होंगे। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉल्स। अब फॉल्स का यहाँ मीन गलत से नहीं है, फॉल्स का यहाँ स्यूडो कहने का मतलब सिर्फ ये है, नॉट फॉलोइंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स। स्यूडो मीन्स फॉल्स, आपको पता होना चाहिए। वैसे एग्जाम में आप सिर्फ इतना लिखेंगे, दीज आर स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो, वाई वी कॉल दिस सॉलिड्स स्यूडो, नॉट फॉलोइंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड, क्योंकि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड्स के फॉलो नहीं करते हैं एंड क्रिस्टलाइन फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम ट्रू सॉलिड्स। द लास्ट डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द क्रिस्टलाइन एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैल्साइट क्रिस्टल। जो क्रिस्टलाइन है हमारे, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैल्साइट क्रिस्टल।
कैल्साइट क्रिस्टल बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, विच आर यूज्ड इन प्रिज्म, जो कि हमारे प्रिज्म में यूज़ होंगे। तो क्रिस्टलाइन आर इनडायरेक्टली यूज्ड इन द प्रिज्म। बट एमॉर्फस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एमॉर्फस आर फोटोवोल्टिक सब्सटेंसेस, दे आर यूज्ड एज फोटोवोल्टिक मटेरियल, फोटोवोल्टिक सब्सटेंसेस। तो फोटोवोल्टिक सब्सटेंसेस का मीन क्या है स्टूडेंट्स? फोटोवोल्टिक substances are the substances which can convert the sunlight into the electricity. So they are used, it means amorphous are used as the photovoltaic substances. These can convert the sunlight into the electricity. ये sunlight को electricity में convert कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ अगर हम फोटोवोल्टिक अमॉर्फस सब्सटेंस की बात करेंगे, सनलाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, तो हम किसकी बात करेंगे? अमॉर्फस सिलिकॉन। अमॉर्फस सिलिकॉन कैन कन्वर्ट द सनलाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ फोटोवोल्टिक सब्सटेंस. So these are the differences between the crystalline and amorphous. Now most of the substances, हम अगर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. जो एलिमेंट एंड कंपाउंड हैं वो आपके क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. सो मेनली अगर हम क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है या कंपाउंड है दैट इज रेफर्स टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. कॉपर, सिल्वर, आयरन, सल्फर, दीज ऑल आर द क्रिस्टलाइन. CuFeS, अगर हम आयोडीन की बात कर रहे हैं, एंड ये सारे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल्सो रेफर्स टू द क्रिस्टलाइन. अगर हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, कॉमन कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड, ZnS एंड क्वार्ट्ज, उसका एग्जांपल लिया था अभी हमने, उसको डिस्कस किया परफेक्टली ऑर्डर्ड में या डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में. पोटेशियम नाइट्रेट है आपका. दिस ऑल आर क्रिस्टलाइन. इस तरह अमॉर्फस में मेनली हम क्या लेंगे? ग्लास, रबर, प्लास्टिक, कोल, these all are amorphous substances. These are pseudo solids. The glass, rubber, plastic and coal, these are. फर्दर हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं. टेफ्लॉन है आपका, पॉलीयूरेथेन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, पॉलीयूरेथेन, सेलोफेन, दिस इज पॉलीयूरेथेन. सेलोफेन इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ द amorphous. पॉलीविनाइल क्लोराइड, very important amorphous solid. Fiberglass, these all are the amorphous substances and these are pseudo solids and there is no definite geometric pattern. अगर हम क्रिस्टलाइन में बात करें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. नेफ्थलीन, आपने पढ़ा होगा, नेफ्थलीन बॉल्स सब्लिमेशन देते हैं. सो हियर नेफ्थलीन इज क्रिस्टलाइन. बेंजोइक एसिड, सो दीज आर crystalline substances and having definite geometric pattern. Now we have to discuss about isotropy and anisotropy. This is very important. As I said to you in the differences, crystalline are anisotropic substances and amorphous are isotropic. Substances which have फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी की. सब्सटेंसेज विच हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज? दैट मे बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है स्टूडेंट्स. तो सब्सटेंसेज विच हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो हम उन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जिनके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट हमें ऑब्टेन्ड होंगी. तो सब्सटेंसेस विच हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस. उनको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहेंगे. एंड सिंपली क्रिस्टलाइन जो है हमारे वो एनाइसोट्रोपिक हैं क्योंकि उनमें ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हमें वैल्यू में गेन होगी. सो सिंपली substances which have different physical properties in different directions are called the anisotropic and crystalline substances are anisotropic substances.
सो स्टूडेंट्स, इट इज़ अबाउट द क्रिस्टलाइन, क्योंकि क्रिस्टलाइन आपके कैसे हैं, एनाइसोट्रोपिक हैं। बट अगर हम अमॉर्फस की बात कर रहे हैं तो अमॉर्फस सब्सटेंसेज हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज, amorphous substances have physical properties like electrical conductivity or refractive index, have physical properties same in all the directions। amorphous substances के लिए सारे डायरेक्शंस में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो सेम होंगी इन ऑल द डायरेक्शंस, क्योंकि यहाँ पे कभी भी डिफरेंस नहीं होगा पैटर्न में। ऑल आर रैंडमली प्लेस्ड पार्टिकल्स दैट मे बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो अमॉर्फस सब्सटेंसेज में क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी सेम होंगी इन ऑल द डायरेक्शंस, सो दीज आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेज। दीज आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेज। अमॉर्फस सब्सटेंसेज को हम क्या कहेंगे, आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेज कहेंगे। So students, now this isotropy and anisotropy behavior of the crystalline and amorphous can be understood by this figure। हम यहाँ पे प्लेस्ड कर रहे हैं इन अ रेगुलर पैटर्न पार्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स को हम रेगुलर पैटर्न में प्लेस्ड कर रहे हैं। एंड यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये हमने लिया है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एग्जाम्पल लिया है, एंड देयर इज कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ज्योमेट्रिक पैटर्न। डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में हम कह रहे हैं और रेगुलर पैटर्न है यहाँ। तो क्रिस्टलाइन क्योंकि एनाइसोट्रोपिक शो करते हैं, एनाइसोट्रोपी शो करते हैं, तो हम यहाँ क्या शो कर रहे हैं, एनाइसोट्रोपी इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज। एनाइसोट्रोपी शो कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज में। और यहाँ पे जो हमने पार्टिकल्स लिए हैं दैट मे बी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, और उनको रेगुलर पैटर्न में प्लेस्ड कराया है। तो अब हम यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे, हम ये कह रहे हैं इफ द प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड अलोंग द टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ये जो हमने यहाँ अरेंजमेंट बनाया है और इसमें हम प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करेंगे, उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, और मेज़र करने का जो वे होगा अलोंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस। हम दो अलग अलग डायरेक्शन से मेज़र करेंगे। इफ द प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड अलोंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस, कंसिडर कर लिया हमने ए डैश एंड बी डैश। और अगर ए डैश और बी डैश से चलेंगे हम, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स कम ऑन द वे। तो सिंपली अगर हम ए डैश और बी डैश से जा रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स कम ऑन द वे। बट थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, अगर हम पर्टिकुलरली ए डैश की बात करेंगे और बी डैश की बात करेंगे तो डिफरेंट कंडीशंस ऑब्टेंड होंगी। तो सिंपली बी डैश की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स कम ऑन द वे, बट ए डैश की बात करेंगे तो सिमिलर पार्टिकल्स आएंगे। तो यहाँ अगर हम ले रहे हैं एक अरेंजमेंट, यहाँ देख रहे हैं आप रेड से जिनको शो किया सिर्फ वो पार्टिकल्स आ रहे हैं, दिस इज द ए डैश। सो अलोंग ए डैश डायरेक्शन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स कम ऑन द वे, सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स आ रहे हैं। बट अगर हम इस डायरेक्शन को लेते हैं, इट इज अ डिफर डायरेक्शन, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज बी डैश। इसको हम बी डैश कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और अगर बी डैश के अलोंग अगर हम चल रहे हैं तो हम देखेंगे अल्टरनेट फॉर्म में आपके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आ रहे हैं, रेड फिर ब्लू फिर रेड। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। अलोंग दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स कम अलोंग द बी डैश, अलोंग ए डैश सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स कम। सो अल्टरनेट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स come on the way along BB dash। So students, दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शंस में दो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस ऑब्टेंड हुई। यहाँ BB डैश में हमें अल्टरनेट मिल रहे हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स और वो भी डिफर हैं, बट ए डैश में एक ही टाइप के पार्टिकल्स हमें ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। सो ऑब्वियसली हैंस द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स, एक डायरेक्शन में जब आप चल रहे हैं तो अल्टरनेट पार्टिकल्स आ रहे हैं, अल्टरनेट कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं डिफर एंड वन इन वन डायरेक्शन ए डैश लाइक सिमिलर आ रहे हैं आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। सो सिंपली डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो दिस इज द एनिसोट्रोपी इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज। एंड अगर हमने यहाँ अभी क्रिस्टलाइन का केस कंसिडर किया था, फॉर अमॉर्फस की बात कर रहे हैं अगर हम, फॉर अमॉर्फस सॉलिड्स, तो अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, देयर इज नो रेगुलर पैटर्न, कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, नो ज्योमेट्रिक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। तो द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स इन अमॉर्फस सॉलिड्स आर अरेंज्ड एट रैंडम। जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होंगे दैट आर अरेंज्ड एट रैंडम, एट रेंडमली आप उनको अरेंज करेंगे। देयर इज नो रेगुलर पैटर्न, कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, आपने उनको एट रेंडम अरेंज किया है।
एंड इन डिसऑर्डरली मैनर, और वहाँ पे जो एट रेंडमली आपने जब अरेंज किया इन ए डिसऑर्डरली मैनर, एंड देयरफॉर ऑल द डायरेक्शंस आर आइडेंटिकल, क्योंकि all the formats, all the directions are at random and in a disorder form, so सारे डायरेक्शंस जो हैं आपके वो कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल होंगे, वहाँ पे कोई भी सिमिलैरिटी या किसी तरह का कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि all the directions are at random and constant particles are arranged irregular pattern, arranged in a irregular pattern, in a no definite geometric pattern. So all the directions are identical, so the physical properties are same in all the directions for the case of the amorphous solids. Amorphous solids के केस में क्या होगा, जो भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी. अब यहाँ पे अगर हम फिगर वाइज ड्रॉ करते हैं तो एट रैंडम एक पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स का किसी भी अमॉर्फस सॉलिड के लिए. तो कुछ पार्टिकल्स को हमने ब्लू से, कुछ को रेड से हमने शो किया है. तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं है स्टूडेंट्स, इर्रेगुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं. ये आपका सेकंड रो हमने ड्रॉ किया, और यहाँ भी बहुत ही इर्रेगुलर पैटर्न है, कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न आपको नहीं गेन होगा. और इसी तरह से हम शो करते जा रहे हैं, एट रैंडमली हम कांस्टेंट पार्टिकल्स को प्लेस्ड कर रहे हैं. एंड दिस इज द amorphous solid where constant particles are placed at randomly. This is the irregular pattern. Simply ये क्या है, irregular pattern है. So क्योंकि irregular pattern है, all directions are the same. आपके सारे directions कैसे हैं, same है. और अगर सारे direction आपके same हैं, it means simply physical properties are same in all the directions. So amorphous solids की अगर हम बात कर रहे हैं, so amorphous आर आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस. अमॉर्फस कैसे हो जाएंगे, आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस. किसी भी डायरेक्शन में हम जाएंगे, सभी डायरेक्शंस में सेम शो होंगी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज. डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, हेयर ऑल डायरेक्शंस आर आइडेंटिकल. यहाँ पे सारे डायरेक्शंस आपके कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं. सो अमॉर्फस, सो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड अमॉर्फस आर isotropic substances. Okay students,